हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्ति सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन विद भक्ति सुरभि में। तो मैंने एक यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे लेके प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए ताकि मैं उनका जवाब इस वीडियो में दे पाऊँ। मैंने इसका इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट नहीं किया था कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं पूछ लीजिए या क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं डालूंगी। इसका मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे कुछ नहीं डाला था। सो फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम को छोड़ के ओनली फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी टैब जो कमेंट्स आए थे उस पर्टिकुलर पोस्ट में उन्हीं को मैंने लिया है। बाकी कुछ वीडियोज़ में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, आपका पूरा नाम क्या है, आपने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया एक बार भी, आपने सिर्फ बोला भक्ति सुरभि, लेकिन आपका नाम क्या है, असली में आपका नाम क्या है, आपका नाम भक्ति सुरभि कैसे हुआ, आप कहाँ से है, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका मदर टंग क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने सोचा उनका भी जवाब दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले जो कम्युनिटी टैब में हमारे क्वेश्चंस आए थे अलॉन्ग विद देयर नेम्स, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनके नाम के साथ मैं आज के वीडियो में आंसर करने वाली हूँ उन्होंने जो क्वेश्चंस मेरे से पूछा था उन सब का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट इज फ्रॉम स्मिता मिश्रा। हर क्वेश्चन इज, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। My question is, in which form do you love Krishna? Means if you love him like kid, husband, father, etc. So I always, as you all know, my YouTube family knows very well that I consider Puchku as my cute little younger brother. So I also consider Radharaman Lal as my cute little younger brother. For me, I love considering Krishna as my younger brother. How you came in Krishna consciousness and in which age you came in Krishna consciousness? So for me, I came into Krishna consciousness when I was a child because for me it was nothing different because I already saw my parents practicing Krishna consciousness. So I developed this through them. I started practicing through them. I learned from them. So when I was a child, my parents taught me that I should chant. I used to chant daily since I was a child, but I didn't know why we should chant. So as I grew up, my parents taught me that why I should chant, and then I went to my nearest ISKCON temple. I learnt many things from there. So like this, I gradually developed practicing the process of Krishna consciousness fully, completely, but I am practicing it since my childhood. So if you ask me at what age you started practicing Krishna consciousness, so you can say that since childhood, since my childhood. And your next question is, and who is your inspiration in bhakti? For me, my inspiration in bhakti is of course my family. So my greatest inspiration is my grandmother because she is 81 years old. She wakes up early in the morning every day. She performs Mangal Aarti. She cooks every day. She is also staying in Vrindavan Dham by the mercy of Srimati Radharani. I'll also bring her up in some of my videos someday. So I just always see her, I look at her and wonder that where from she gets all that strength. So then I finally realized that she gets all that strength from bhakti, from Srimati Radharani, from Shri Radharaman Lal, because it's not possible for a 81 years old woman to wake up early in the morning, perform Mangal Aarti, chant more than 25 rounds regularly, and then she is also cooking. I just never see her sitting doing nothing. I just never see her. I always see her doing something or the other. And also related to bhakti, she is very serious, very sincere. So she is my greatest inspiration. And after that, my mother, she is also my greatest inspiration because I see her that since my childhood, I am seeing her how she is managing home, how she is managing our temple, how she is managing everything together. So I just wondered that she is a wonder woman. How is it possible to manage all these things all alone? So she is taking more than 5 classes. She is managing my studies since childhood. I have learnt everything from her. And then related to bhakti, she is doing amazing. She is very sincere. She is managing our nearest ISKCON temple. Every preaching work she is doing that, and also she is managing our home. And for my father, he is also my greatest inspiration because I can see that
he works under central government under Ministry of Labor. So I see that he is going to work every day and how he is managing bhakti and work together, how he is managing our home, work, office and bhakti together, because it's very easy to leave everything and practice bhakti, but it's very difficult when you are managing studies, job, home and bhakti all together. So my mother, father, grandmother, they are all greatest inspiration for me in Krishna consciousness. Next question is from Sonali Sharma. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. My question, how you came in Krishna consciousness and when? So it's the same answer that I am practicing Krishna consciousness since childhood, and how I came, it was nothing different from me. I came through my parents because already my family was practicing Krishna consciousness, so I started developing the practice of Krishna consciousness through them. So next question पूछा है सिंप्लीफाइड न्यूज ने. इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है, तो मैं एक एक करके जवाब देती हूँ. पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि माता जी आप एजुकेशन कहाँ से परस्यू कर रही है. हमें पता है आप बीबीए कर रही हैं. हाँ, आपको सही पता है. मैं बीबीए ऑनर्स किया है. मैंने बीबीए ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है और इसी ईयर में मैंने कंप्लीट किया है. एंड करेंटली आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा. जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा से मैं अभी प्रेजेंट एमबीए में मेरा एडमिशन हुआ है. अक्टूबर में एडमिशन हुआ था. अब इसके बाद थॉट्स ऑन मैरिज. मैंने मैरिज के बारे में कुछ नहीं सोचा है. मैं फिलहाल आई एम फोकसिंग मोर ऑन माई स्टडीज एंड ऑन माई भक्ति. सो लेट्स सी व्हाट इज कृष्णाज प्लान फॉर मी. आई हैव नो प्लान्स येट फॉर मैरिज. थर्ड क्वेश्चन है न्यू डिवोटीज को आपके सजेशंस. तो जो नए नए भक्ति जीवन में आए हैं, न्यू डिवोटीज है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एक ही सजेशन दूंगी. बहुत सारे लोग बहुत कुछ सजेशंस देंगे, ये करो वो करो, लेकिन सबसे बड़ा सजेशन मेरे तरफ से आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट हेल्पफुल, वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करो. बिकॉज चैंटिंग से क्या होता है, जितना आप ज़्यादा चैंटिंग करते हैं उतना आपका हृदय शुद्ध होता है, प्यूरिफाई होता है, क्लेंस होता है. इसी तरीके से आप भक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहोगे. भक्ति जीवन में चैंटिंग के बिना कुछ नहीं है. चैंटिंग से ही सब कुछ है. चैंटिंग पे ही भक्ति जीवन स्टार्ट होता है. चैंटिंग से ही भक्ति जीवन स्टार्ट होता है. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग कीजिए. वही मेन हमारे जीवन का गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करेंगे ताकि एंड मोमेंट में हमारा भगवान का नाम हमारे मुंह से निकले. अब जैसे कि हमारा एग्जाम है, तो पूरे साल भर पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम के दिन लिख के क्या आएंगे. इसलिए पढ़ना ज़रूरी है. पूरे साल भर जो पढ़ेगा वही सब कुछ लिख के आ पाएगा. तो इसलिए कोशिश कीजिए पूरे ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करने की. साथ ही साथ हमारे जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, वो तो फॉलो करना ही है. लेकिन सजेशन अगर आप पूछ रहे हो तो मैं यही बोलूँगी, कीप चैंटिंग, कीप चैंटिंग, कीप चैंटिंग मोर एंड मोर. जितना आप चैंट करोगे उतना आप अंदर से बाहर से सभी जगह से खुश रहेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जश दास ने. व्हाट्स योर डेली रूटीन. अभी मेरा रूटीन बिल्कुल बिगड़ गया है. अभी लॉकडाउन था इसके पहले, तो तब बिल्कुल अलग सा ही रूटीन था. तब मैं अपना ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम, अपना पूरा टाइम ही भक्ति में दे पा रही थी. भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करना, भजन करना, मम्मी के साथ प्रैक्टिस करना, वो सब अभी बिल्कुल बंद हो गया है. अभी मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है. अभी स्टडीज़ एंड भक्ति दोनों को एक साथ मैनेज करके चलना पड़ रहा है. सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के दादी मंगल आरती करती है, उनके साथ मैं अटेंड करती हूँ. देन मैं राधिका कृपा कटाक्ष पढ़ती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ. चैंटिंग में ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ सुबह, बिकॉज रात को मैं टायर्ड होकर कॉलेज से आती हूँ, फिर सो जाती हूँ बस. तो मॉर्निंग में ही मैं चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ. जो बाकी रहता है रिमेनिंग पार्ट, वो मैं आके कॉलेज से करती हूँ. ये वीकेंड्स की बात नहीं है, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जैसा भी कॉलेज रहता है. देन यहाँ से वृंदावन से हमारी कॉलेज जाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम बस से जाते. कॉलेज बस से बस आती है 9:15 पे, तो उसके लिए रेडी होना, कॉलेज के लिए तैयार होना, सब कुछ करती हूँ. एंड देन जाती हूँ रेडी होके. उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होता है 10 बजे से इवनिंग के 6 बजे तक, 6 PM. घर आते आते 7 बज जाता है, 7:15, 7:20. कभी कभी जैसा भी वृंदावन में कुछ ना कुछ होता ही है, ट्रैफिक होता है, बहुत रश होता है, तब 7:30 हो जाता है. घर आती हूँ, घर आके फ्रेश होती हूँ, जो रिमेनिंग चैंटिंग बाकी रहता है वो कर लेती हूँ. थोड़ा मोबाइल में देखती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ वीडियोस देखती हूँ.
एंड देन कुछ पढ़ लेती हूँ, अगर कॉलेज में कुछ मिला हो असाइनमेंट उसको कंप्लीट करती हूँ, और नहीं तो मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। और फिर ऐसे ही मेरा रूटीन अभी बिल्कुल बिगड़ गया है, मैसी हो गया है। और वीकेंड्स की बात है तो उसमें मैं मंदिर जाती हूँ, और कभी छुट्टी रहता है तब भी मैं जाती हूँ, डेली जाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अब्रॉड व्लॉग्स। माई क्वेश्चन इज हाउ यू बिकेम सो मच स्वीटेस्ट डार्लिंग ऑफ कृष्णा। So how to answer that? We all are sweetest darlings of Krishna, isn't it? I am no one special that I am, how I became sweetest darling of Krishna. We all are Krishna's children, and Krishna loves every one of us equally in the same way. So there is no answer to it that how I became so much sweetest darling of Krishna. Krishna loves every one of us, you, me and all of us equally. So next question is from Amol Ande. My question is, what is the meaning of the mala which we wear, and what is the importance of mala in our lives? So the meaning of the mala, you mean Tulsi mala, Kanthi mala, Tulsi Kanthi mala. So I have already uploaded a video on Tulsi Kanthi mala, that what is the importance of wearing Tulsi Kanthi mala. So please refer to that. It's already in my YouTube channel. I will provide the link in my description box below. You can also click from there. So, and what is the importance of mala in our lives? I have provided many scriptural references that what is the importance of wearing Tulsi mala. So please watch that video, you will find your answer. Okay. Then the next question is from Nupur Das. She asked, Suravi, at which age you started Bhakti mala, that is mala japna? Kindly share your very first experience of it, your beginning days. I wonder how you did it. So frankly speaking, honestly speaking, I used to love chanting very much. I still remember that how I used to love chanting, because when I was given some home task when I was in nursery or kindergarten, so I was given some home tasks to memorize something or to write something. So I was given that, and my mother used to tell me that please complete that. She used to sit beside me, and I used to wonder that no, I will chant. So I used to get some kind of enjoyment and satisfaction. It was like something like kids love watching cartoons, that no, I will go and watch cartoon, I will go and play like that. So I also used to watch cartoon, I still do that, but chanting was a very enjoyable activity, you can say activity for me. I used to love chanting very much, and I still love chanting, but I don't have that much seriousness, I don't have that much innocence as I used to have before. It's like, yes, I should chant because for reaching the main goal of our life I have to chant, but for me when I was a child, chanting was a very satisfactory, enjoyable activity for me. I used to love chanting very much. And at what age you started chanting Bhakti mala? I started as I already mentioned chanting Jap mala, or you can say I started chanting since I was a child, because I saw my parents that they were chanting Hare Krishna like this. So I used to wonder. First of all, it was very difficult for me to memorize the full Maha Mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So I used to chant it wrongly, like Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, like this. And then through practicing, I saw my parents that they are saying Hare Krishna 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 Hare Hare. So I learned from there. But in the beginning, I used to chant it wrongly. It was not that I was a very expert. I was very sincere and expert since childhood in chanting, but I developed it gradually, and we all develop it gradually. Next question फिर से simplified news से है। माता जी, ये एक क्वेश्चन तो नहीं है, पर प्लीज आप मेरे अक्षिता के लिए प्रार्थना कीजिएगा। कृष्णा की एक प्योर डिवोटी से ही अप्रोच किया जा सकता है। अक्षिता जी, मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। मैं अभी वृंदावन धाम में बैठी हूँ, मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण, श्री श्री राधा रमन लाल और श्रीमती राधा रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप बहुत अच्छे से रहिए और बहुत खुश रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मिता मिश्रा ने फिर से पूछा है। हरे कृष्णा माता जी, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, बट प्लीज 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 गिव अस सम दर्शंस ऑफ ओवर नॉटी पुचकू।
मैं ज़रूर पुचकू के कुछ फोटोज़, पुचकू के कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगी। बहुत दिनों से अपलोड नहीं कर पाई, जल्दी उसके वीडियोज़ फोटोज़ आएंगे। फिर प्रिया कांजू की आराधिका ने लिखा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर अर्पित मिश्रा जी ने लिखा है राधा रानी के चरणों में मेरे नाम की हाजिरी लगाइएगा, राधे राधे राधे। जी ज़रूर, राधा रानी से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे YouTube परिवार से जो लोग कनेक्टेड है, सभी के लिए मैं और सभी के परिवार के लिए मैं वृंदावन धाम में बैठ के राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ। आप सब बहुत अच्छे से रहिए और श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा आप सब पर हमेशा बने रहे। रिया देव ने लिखा है राधे 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 राधे। लक्ष्मण नारू ने लिखा है राधे राधे। उत्पल विश्वास जी ने लिखा है राधे राधे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुल नाथ ने पूछा है इन विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। ये भी एक मैंने पहले कभी डिस्क्लोज नहीं किया है, और यू कैन से दैट व्हाट्स योर मदर लैंग्वेज। सो आई स्पीक एट होम इन बंगाली बिकॉज मैं बंगाली हूँ। ठीक है, आज मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ अपने वीडियो में, जिनको नहीं पता है मैं बंगाली हूँ। मेरा पूरा नाम क्या है वो भी मैं आज के वीडियो में आप सबके सामने डिस्क्लोज करने वाली हूँ। मैं बंगाली हूँ, इसलिए इट्स वेरी नेचुरल कि मैं घर में बंगाली में ही बात करती हूँ। वाई डोंट यू मेक सम वीडियो इन बंगाली। मेरे YouTube फैमिली से या मेरे Facebook फैमिली से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें मैक्सिमम लोग हिंदी समझते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? मेरे वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि किसी को एंटरटेन करना। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे ताकि वो उस चीज़ को अपने जीवन में रियलाइज कर पाए। कुछ दर्शंस में लोगों तक पहुंचाऊं, तो कुछ भी चीज़ मैं बंगाली में बोलूंगी तो सब लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन हिंदी बंगालीज को भी समझ आता है एंड साथ ही साथ सबको इंडिया में ऑलमोस्ट समझ आ जाता है। दैट्स व्हाई आई मेक वीडियोज ऑन इंग्लिश एंड हिंदी। और जो भजन्स हैं वो एक्सेप्शनल केसेस है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक ओडिया भजन्स हो गया, बंगाली भजन्स हो गया, वो तो मैं डालती रहती हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। उसमें इट्स जस्ट फॉर यू कैन से एंटरटेनमेंट, बट इन्फॉर्मेशन जब मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसको समझ पाए, तब ना मेरा वीडियो बनाना सफल हो पाएगा। इसलिए मैं बंगाली में वीडियो नहीं बनाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है केशव अग्रवाल जी ने, निधिवन में मंगल आरती का टाइम क्या है? निधिवन में जो टाइमिंग है मंदिर का वो मैं बता देती हूँ। वो गर्मी के टाइम पे, ठंड के टाइम पे, समर एंड विंटर में अलग अलग है। समर्स में है सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक, और विंटर्स में है सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। ये मंदिर ओपनिंग का टाइम है। अभिजीत बागती हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर रविंद्र मंडल राधे राधे माता जी, राधा मैया ऑलवेज ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, प्लीज कीप मी इन योर प्रेयर्स। नेक्स्ट विकास चतुर्वेदी ने लिखा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बसंत कुमार समल, उन्होंने लिखा है माई क्वेश्चन इज व्हेन योर लाइफ चेंज्ड एंड हु इज योर इंस्पिरेशन। सो माई लाइफ चेंज्ड since after I came into bhakti, so it has already changed since my childhood, and I'm very lucky. I feel myself very blessed that I did not have to go through a very difficult path, because I have seen many devotees, their families don't support them in bhakti and they have to go through a very difficult path managing all these things alone. So it was me, my family who supported me in bhakti, and my family was the one who brought me in bhakti. So they have changed my life and I'm thankful to Krishna for he blessed me with such a beautiful family. Who is your inspiration? I have already answered that. Rashmita Shahu, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Sanju CR7, Hare Krishna Radhe Radhe, Hare Krishna. Gadadhar Parbo, Shri Radhe Radhe, Shri Radhe. Adhira Behra, Radhe Radhe, Radhe Radhe. Debu Burman, Hare Krishna, Hare Krishna. Sujay Vasak, जय निताई जय निताई। ओके, दया पांडे, हरे हरे लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम ऑलमाइटी एंड श्री राधे राधे। बेटी, आप जो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का समाज को दे रही हो, बहुत बड़ा उपकार कर रही हो। बस आप सबका ही आशीर्वाद है, आप सब ऐसे ही आशीर्वाद करते रहिए ताकि मैं पूरे जीवन भर भगवान के वाणी का, भगवान के नाम का और भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार कर पाऊं पूरे दुनिया में। प्लीज आप लोग आशीर्वाद करते रहिए। ओके, राधे कृष्ण ने लिखा है राधे राधे। नेक्स्ट लिखा है आयुषीज इन्वेंशंस, शी इज वेरी स्वीट। उनका कमेंट मेरा हर वीडियो में ऑलमोस्ट आता है। लिखा है हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा आयुषी। थैंक्स दी,
आप ये वीडियो लाने वाली हो। मेरी क्वेश्चन ये है कि आपका कोई जीवन संगी है कृष्ण के बिना, और आप जीवन संगी क्या करेंगे कभी भी, ये प्लीज 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 बताइए दी। तो मेरा कोई जीवन संगी नहीं है, and of course for girls you are already instructed that we should under the protection of our father, then under the protection of our husband, and then under the protection of our son. It's very controversial, I won't comment much on this. Of course I will choose someone in my life, maybe in future, maybe some time later after I complete my studies. लेकिन अभी अगर आप पूछ रहे हो नहीं, मेरे जीवन में कोई भी जीवन संगी नहीं है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है किसी की भी, मैं अकेले ठीक हूँ, मेरे घर वाले हैं मेरे साथ और बाकी भगवान है। आप जैसी प्यारी स्वीट एक मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी बहन है, इतना प्यारा सा हमारा यूट्यूब परिवार, सोशल मीडिया परिवार है हमारा, और साथ ही साथ भगवान की कृपा है, तो इसलिए मुझे फ़िलहाल अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। बट फ्यूचर में कभी सोच के देखेंगे। अभी मेरे जीवन में कोई जीवन संगी नहीं है, कृष्ण ही बहुत है, राधा रानी बहुत है, अभी जीवन संगी की मुझे ज़रूरत नहीं है। होगा कभी तो YouTube में ही शेयर करूँगी सबसे पहले। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक कोई कमेंट करता है, बहुत बुरा कमेंट करता है, उसका नाम है बप्पी फेसबुक। आई नो दिस इज़ अ फेक अकाउंट, बप्पी फेसबुक बोल के, मुझे पता है ये फेक अकाउंट है, कमेंट्स पढ़ के समझ आता है। वैसे उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं डेली। हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ भी नहीं सकती, इतना गंदा कमेंट्स करते हैं। तो मैं यही मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में इतना ही इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कीजिए, और फेक अकाउंट्स बना के बात मत कीजिए। जो बोलना है डायरेक्ट बोलिए, क्योंकि पीठ पीछे छिपकली बोलती है। जो बोलना है हिम्मत है तो मुंह पे बोलिए, नाम चेंज करके मत बोलिए। और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में आपने इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है कि इतना इन्फॉर्मेशन मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, मुझे खुद भी नहीं पता है। इतना इन्फॉर्मेशन आपने इधर उधर से रिसर्च करके, सर्वे करके कलेक्ट किया है। सो प्लीज़ गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मैसेज लोगों तक मत फैलाइए। जो बोलना है डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट बात करते हैं, और पीठ पीछे बात मत कीजिए। मुझे पीठ पीछे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही सच्चे इंसान है तो खुद का नाम देके बोलिए ना। बप्पी फेसबुक क्या है, मुझे तो नहीं लगता मैं बप्पी फेसबुक बोल के किसी को भी जानती हूँ। मुझे पता है दिस इज अ फेक अकाउंट। तो कुछ भी बोलना हो डायरेक्ट बोलिए। और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में आप इतना इंटरेस्टेड क्यों है, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो मैं ये हेट कमेंट्स वाला वीडियो नहीं है, फिर भी मैंने ये ऐड किया क्योंकि इनका कमेंट उसमें भी आया था। वृंदावन वास वाला जो वीडियो था उसमें इनका कमेंट आया था, पता नहीं ये कहाँ से है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विवेक श्रीवास्तव। वाह माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आशुतोष कर्मकार, हरे कृष्णा। ओके, देन रिया देव, राधे राधे, जय श्री राधे। लक्ष्मण नारू, राधे राधे, जय श्री राधे। नीतू सिंह, राधे राधे, जय श्री राधे। सुंदर सिंह सेरावत, राधे राधे, राधे राधे जी। संतोष कुमार, राधे राधे, राधे राधे। सर्वादास, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। सोमेन केओरा, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। क्वेश्चन है ए के निराला, व्हाट्स योर व्यूज ऑन लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, एंड व्हाई वुड यू प्रेफर लव और अरेंज मैरिज, एंड व्हाई? My views on love marriage and arranged marriage, I am blank what to say, I don't know, but I think that it's good to know, you know, that both the families know each other. It's good to know the person you are marrying. It's not good to marry a stranger, because you have to stay with him throughout the life, and you don't know that what will happen after your marriage, because nowadays everyone seems good in front of everyone, so it's not their real faces. So to know their real faces, it's very much important to know the person and his family, and for that I think that both the families should know each other well before marrying to the person. The girl should know the boy well and the boy should know the girl well, and after that, after knowing each other, after mutual understanding, they should marry each other, not before that. Okay, next question उन्हीं का है, what's your view on joint family and nuclear family? What would you prefer, joint or nuclear family? I prefer both. I don't have any problem in joint family or nuclear family, but I think that family is the main thing. Family should be good. There should be unity, there should be cooperation, there should be understanding among all the family members, and rest nuclear family, joint family एक ही बात है। कोई भी family हो, family अच्छी हो तो सभी के साथ रह सकते हैं,
बॉन्डिंग अच्छी हो तो न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, एक ही बात है। तो मुझे तो ज़्यादा वैसे अच्छा जॉइंट फैमिली लगता है, बट न्यूक्लियर फैमिली भी ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली दोनों ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवाशीष पारीमानिक ने पूछा है, दीदी राधे राधे, हरे कृष्णा, सो क्यूट। हरे कृष्णा, थैंक यू भाई। क्वेश्चन है हमारा राधे कृष्णा भक्ति एंड धार्मिक क्वेश्चन। लिखा है आप एकादशी का व्रत में क्या क्या करती हो पूरा दिन और क्या प्रसाद पाती हो, कितनी माला करती हो, क्या आपसे मिल सकते हैं? एकादशी में हमें जितना हम अधिक माला जप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। एकादशी में 25 राउंड्स मैं करती हूँ। 25 तो मिनिमम है, करना ही चाहिए। एकादशी में आप क्या करते हैं पूरा दिन? एकादशी में भोजन से ज़्यादा भजन करना चाहिए, तो एकादशी में हम भजन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। एकादशी अगर रहता है तो मैं कॉलेज को भी स्किप कर देती हूँ उस दिन, लेकिन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो कॉलेज जाना ही पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम में, भगवान में एंगेज रखने की। क्या प्रसाद पाती हो? एकादशी देखिए, मैं पहले निर्जला करती थी, मैं कुछ भी नहीं पाती थी। उसके बाद मुझे कोविड हुआ था, तो फिर डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली मना कर दिया, क्योंकि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे उसके बाद। तो डॉक्टर ने फिर मना कर दिया था कि मुझे फास्ट नहीं रखना है, निर्जला तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर जब भी रखती थी मुझे फिर मेरा हेल्थ ख़राब हो जाता था, इसलिए अभी मैं प्रसाद लेती हूँ। तो प्रसाद जैसे सागू का पुलाव हो गया, फिर आप आलू ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, दूध ले सकते हो, बहुत कुछ है जो एकादशी के दिन हम पा सकते हैं। फिर लिखा है स्निग्धा सोनालिन, मेरी मैसेज की रिप्लाई नहीं करती हो, क्या गुस्सा हो मुझ पर? वीडियो भी बहुत कम बनाती हो आजकल, सो आई विल वेरी सैड फॉर यू बिकॉज यू आर माई यंगर सिस्टर, दैट्स वाई। दीदी स्निग्धा दी, जय जगन्नाथ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी और आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए, ये मेरे पास एक फ़ोन है, यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप है, और मेरा एक फ़ोन है उसमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक है। तो एक फ़ोन इसमें नहीं है, इसमें मैं वीडियोस एडिट वगैरह सब करती हूँ, तो इसलिए इसमें मैं स्टोरेज खाली रखती हूँ। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम बहुत कम खोलती हूँ, बहुत लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करने के लिए। मैसेज में एक भी सीन नहीं करती बहुत, और सीन कहाँ से करूँगी? मैं खोलूँगी जब तब ना सीन करूँगी, इसलिए मेरे मैसेज, आपके मैसेज मेरे तक पहुँचता ही नहीं है। मैं बहुत 6-7 दिन बाद अगर खोलूँ तो देख लेती हूँ। और वीडियो कम बनाती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉलेज में रहती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। फिर भी मैं वीकेंड्स में कोशिश कर रही हूँ, रात को भी मैं जाग के कोशिश करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि कोई वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है, कुछ सोच के इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। बट मैं कोशिश करूँगी रेगुलरली अपना वीडियोस अपलोड करने की, क्योंकि ये यूट्यूब हमारा जो परिवार है ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है। इसको मैं कभी खोना नहीं चाहती, इसको मैं अच्छे से संभाल के रखना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि अच्छे से मैं सब कुछ बैलेंस करके चल पाऊँ। मेरे लिए अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, एग्ज़ाम्स भी था मेरा अभी, फिर कॉलेज भी चल रहा है, असाइनमेंट्स है, प्रेजेंटेशन है, साथ ही साथ यूट्यूब को बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। प्लीज़ आप सब प्रे कीजिए ताकि दोनों को बैलेंस करके मैं चल पाऊँ। फिर लिखा है प्रियंका 23 ने, दीदी क्या आप वृंदावन से जपमाला दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना एड्रेस सब भेजिए, मैं आपको जपमाला दे दूँगी। ओके। सुरेंद्र सिंह ने लिखा है प्रणाम, मुझे आपका नंबर चाहिए व्हाट्सएप। सॉरी, मैं व्हाट्सएप नंबर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आपको अगर कोई भी बात करना है आप मुझे ईमेल कीजिए sudevisundari88@gmail.com, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, नीचे मैं लिंक डाल दूंगी, उस पर आप मैसेज कीजिए मुझे। क्वेश्चन पूछा है इप्शिता मोहंती ने, उन्होंने पूछा है हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मेरी क्वेश्चन है कि तुलसी माला धारण करने के नियम बताइए। राधे कृष्णा। सो मैंने पहले जो तुलसी माला से रिलेटेड वीडियो बना था उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट सभी कमेंट्स ऑलमोस्ट उसी का था कि तुलसी माला धारण करने के नियम बताइए। मैंने बोला था वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो इसी में बना रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो तुलसी माला धारण करने के नियम है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, और साथ ही साथ मशरूम नहीं ले सकते हैं आप। फिर हो गया आपका, आप चाय नहीं पी सकते हैं, और नॉनवेज के साथ साथ ही आपको अनियन गार्लिक आप नहीं खा सकते हैं। उसके बाद आप चाय नहीं पी सकते हैं, कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं, ये नशा होता है। कोई भी तरह का नशा आप नहीं कर सकते, शराब पीना या कोई भी तरह का नशा। और
पान गुटखा ये सब खाना, ये सब भी आप नहीं कर सकते हैं। फिर सिगरेट बीड़ी ये सब भी नहीं ले सकते हैं। और फिर आप जुआ ये सब नहीं खेल सकते हैं। और उसके बाद आप लॉटरी ये सब खेल भी नहीं खेल सकते हैं। अवैध संग नहीं कर सकते हैं। एकादशी करना होगा, भोग लगा के खाना होगा। जो नॉनवेज बनाता है उसके हाथों से भी नहीं खाना है। और जहाँ पे नॉनवेज हो रहा है उस बर्तन में भी नहीं खाना है। बस यही तुलसी माला धारण करने के नियम है। थोड़ा डिफिकल्ट है लगता है, बट करते करते हो जाता है। ऋतु बुक्कल ने पूछा है, आप श्री कृष्ण जी की भक्त कैसे बनी? मैं श्री कृष्ण जी की भक्त बनी नहीं हूँ, मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ। और राधा रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से उन्होंने मुझे वृंदावन वास दिया है। वृंदावन में रह के कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी भक्ति मेरे अंदर आ जाए और थोड़ा मैं भक्ति जीवन को पालन करते हुए भगवान का भक्त बन सकूं। तो आप सबका आशीर्वाद और प्रार्थना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान मेरी बात सुनेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशी कौशिक का। हरे कृष्णा, मेरा क्वेश्चन, कृष्ण के भक्ति करना चाहती हूँ लेकिन मैंने दीक्षा नहीं ली है क्योंकि मेरा फैमिली खुश नहीं है। बहुत मन करता है भक्ति करने को। आप बताओ क्या करूँ मैं? बिना दीक्षा के कैसे भक्ति करूँ? प्लीज टेल मी। बिना दीक्षा के भी भक्ति किया जा सकता है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप कृष्ण को गुरु मानिए, जितने भी नियम है उसका पालन कीजिए, जप करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। केशव अग्रवाल ने पूछा है, आचमन कैसे करते हैं किसी भी रिवर या कुंड में? वो तो मैं जाऊंगी, आपको जाके दिखाऊंगी। मैं राधा कुंड जाऊंगी तो वहां पे जाके आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके वीडियो बना के भेजूंगी, अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। सौमेन केवड़ा ने लिखा है, दीदी मेरा क्वेश्चन है कि आप सेलिवेसी कैसे पालन किए हैं? सेलिवेसी क्या होता है मुझे नहीं पता, प्लीज आप फिर से कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई कर पाऊँ। संगीता गिरी ने लिखा है, मैम माय क्वेश्चन इज कि कहते हैं कि जब पीरियड्स में हो तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग फीमेल भगवत गीता करती है, इन केस अगर वो पीरियड्स में है तो क्या तभी वो मंदिरों में पूजा करती है? मैम प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। पीरियड्स में मंदिर जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन पीरियड्स में मंदिर जा सकते हैं, लेकिन आप कोई भी सामान, कोई भी चीज टच नहीं कर सकते हैं। आप भगवान के आरती का सामग्री, भगवान के फूल, कुछ भी आप भगवान के लिए लेके नहीं जा सकते। कुछ भगवत गीता इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो भगवत गीता आई थिंक इन कुछ दिनों में नहीं पढ़ना ही बेटर होगा। ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, है ना, कि पीरियड्स के टाइम पे फीमेल जो डिवोटीज है वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है। चक्रवर्ती चल्लापल्ली श्रीनिवास, I want to surrender myself in the service of Krishna. Please guide me in the process. So do it now. We should never be late. We should never delay because we never know that what is going to happen next. So please surrender yourself to Krishna, and then Krishna will take care of you, and Krishna will see the rest. Kusum Yadav ka. My question is, how to deal with eve teasers in Vrindavan or some rude rickshaw walas of Vrindavan? See, they are Brajvasis, and I don't think that I should comment something bad about them. There are bad people, evil people in every place. Every place you will visit, you will find some people like that or the other. But it's better to avoid them, to ignore them, because if we say something bad to them, then we will commit offense. So it's better to avoid them, ignore them. Whenever some rude rickshaw walas are, disturbing you, because I also visit college every day, and they are just like stopping nearby me. Will you go continuously, and I am waiting for my college bus, but they will not listen. They will continuously ask me if you will go. So it's their habit, it's their task to ask you to go, but I always say Radhe Radhe, Radhe Radhe. So it's better to ignore and say Radhe Radhe and go from there. Just don't quarrel, don't get irritated, because you have to adjust with this. If you are visiting Vrindavan for some days, you have to adjust with this. So you have to adjust with this and just say Radhe Radhe and go ahead. Just say Radhe Radhe and go ahead. Just ignore and try not to commit offense in Dham. I recently visited Vrindavan, and one man wearing orange colored dhoti kurta was asking for money from visitors outside ISKCON, and some Prabhuji comment to stay away from such people.
Yes, there are many people in every tourist place who are doing all such things, wearing the dress of a saint, behaving like a saint. As we can see that Ravan also dressed up like a saint and kidnapped Sita. So it's just like that. So just say Radhe Radhe, ignore, keep chanting, visit temples, have darshan, keep chanting, say Radhe Radhe and go from there. Just ignore and they won't disturb you. If you'll talk with them, they will also continue. So it will go on and there will be a quarrel, there will be a offense. So it's better to avoid, ignore, say Radhe Radhe and go ahead. Just don't deal with them because you won't be able to deal with them. So we are also facing the same things every day, but we say Radhe Radhe and we go from there. It's better not to quarrel with anyone. That's all for my YouTube community post. और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, और जो लास्ट क्वेश्चन डिस्क्लोज मैं करना चाहती हूँ, मेरा पूरा नाम क्या है। तो मेरा पूरा नाम है सुरभि मुखर्जी। माय नेम इज सुरभि मुखर्जी। आई बिलोंग टू अ बंगाली ब्राह्मण फैमिली। मैं बंगाली ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरा नाम है सुरभि मुखर्जी। तो आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में किसी को नहीं पता है मेरा पूरा नाम क्या है। आज मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ। एंड भक्तिन सुरभि इज़ लाइक दैट आफ्टर आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये नाम मेरा हुआ। तो बस यही यूट्यूब के कुछ क्वेश्चंस थे। इंस्टाग्राम पे भी एक दिन डालूंगी, फिर करते हैं बात। तो चलिए वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री वृंदावन धाम।